Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that today is our English language turn, so I'm going to start a new chapter in English language. Okay, beta? So all of you take out your English language book as well as notebook also for reading the next lesson. Okay, the lesson name is the noun case. Okay, so today we will discuss about the topic the noun case. Okay, now let's start. All of you open page number 28. Okay, beta. So first of all, we will discuss the definition of the noun. What noun case? What is noun case? Okay, so the relation in which a noun stands to some other word in a sentence is called the case. Okay, the relation in which a noun stands, ध्यान से समझिएगा, in which a noun stands to some other word. ठीक है, यानी कि वो रिलेशन जिसमें कि नाउन किसी अदर वर्ड के साथ सेंटेंस में जो रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड केस. एंड यू नो दैट देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस. ओके, फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूसेटिव केस, एंड थर्ड वन इज पॉजेसिव केस और जेनिटिव केस. ओके, 3 cases of nouns and pronouns. So first, nominative case. What is nominative case? A noun or pronoun that works as a subject of a verb in a sentence is said to be in the nominative case. Okay? Any noun or pronoun that works as a subject in a sentence. Just like, see the example, I am a sportsman. So what is subject here? I. Okay? You all can see what is subject here? I. I is a subject. So here is a nominative case. ठीक है, तो I क्या है? Nominative case है, because this works as a subject in the sentence. ठीक है, तो I क्या हो गया हमारा? Nominative case हो गया. Okay, just like see the second example, the deer run into the forest. Okay, so what is the subject in this line? Deer. Okay, deer is a subject. So that is nominative case. Okay, and the second one is objective case. What is objective case? Okay, just like the nominative case acts just like a subject. Okay, and in the objective case a noun or pronoun works as an object. Okay, a noun or pronoun that works as an object of a verb in a sentence, it is said to be in the objective case. Okay students, any noun or pronoun which works as an object of the verb in the nominative case, noun or pronoun works as a subject of the verb, and in the objective case a noun or pronoun works as an object of the verb. Okay, see the example, he broke the window. So what is this window? Window क्या है? Objective case. ठीक है, object as a object यहाँ पर work कर रहा है ना, तो that's why this is objective case. Okay, and the next possessive case. What is possessive case? So easy, ध्यान से समझिएगा. A noun or pronoun that denotes the possession or ownership of anything in a sentence. Okay, possession और ownership, ये ध्यान से समझिए. Possession और ownership of anything in a sentence is said to be in the possessive case. ठीक है, पोजेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ पे ना, किसी पर्सन पे, किसी थिंग पे अपना पोजेशन या ओनरशिप शो करना. ठीक है, पोजेशन या ओनरशिप यानी कि उस पर अपना अधिकार दिखाना. ठीक, पोजेशन दिखाना, वो क्या कहलाता है? पॉजेसिव केस. जस्ट लाइक दिस इज राम्स बुक. ठीक है, तो ये क्या है? राम का बुक के ऊपर पोजेशन है ना, कि ये किसकी बुक है? राम की बुक है. ठीक, तो ये क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया. ठीक है, क्लियर? दिस इज राम्स बुक. इट मीन्स ये बुक किसकी है? ये बुक राम की है, तो बुक पे राम का पोजेशन शो हो रहा है. ओके, दैट्स वाई दिस इज इन द पॉजेसिव केस. नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स. फर्स्ट, with a singular noun, possessive case is formed by adding s to the noun. Okay, अगर सिंगुलर नाउन है, ठीक, विद अ सिंगुलर नाउन, तो पॉजेसिव केस क्या होगा? सिर्फ हमें नाउन के साथ में एस ऐड करना होगा. जस्ट लाइक रीमाज बुक. ठीक, रीमा क्या है? सिंगुलर पर्सन है. ठीक, द बॉय, बॉय क्या है? सिंगल है, वन बॉय की बात कर रहे हैं हम लोग. तो द बॉयज पेन,
तो क्या हमने इस पर ऐड किया, पॉजिटिव केस के लिए एस ऐड किया, ठीक। तो क्या हो गया, बॉयज़ पेन, ओके। एंड इन द प्लूरल, प्लूरल में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक बॉयज़, ठीक, इसमें क्या होता है, एस ऑलरेडी इसमें ऐड होता है प्लूरल में, बॉयज़, गर्ल्स, ओके। तो बॉयज़ में ऑलरेडी एस यहाँ पर ऐड है, ओनली वी हैव टू पुट सिंगल कॉमा है, ठीक। क्या करना है, सिंगल कॉमा हम लोग को ऐड करना है एस के साथ, और वो हमारा पॉजिटिव केस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ओनली कॉमा टू द नाउन, पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली कॉमा टू द नाउन, जस्ट लाइक बॉयज़ हॉस्टल, ठीक। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होगा, बट यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का हमको ध्यान रखना है, ओके। एंड गर्ल्स स्कूल। व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स when a plural noun does not ends in s, positive case is formed by adding comma and s, okay। बहुत से nouns ऐसे होते हैं बेटा, so many nouns are there जिसमें s पे एंडिंग नहीं होती है प्लूरल नाउन पे, जस्ट लाइक वुमेन का हम लोग क्या प्लूरल लिखते हैं, वुमेन, ठीक है। तो वुमेन्स तो नहीं लिखते ना, वुमेन लिखते हैं, प्लूरल है लेकिन एस पे एंडिंग नहीं है। तो जिन प्लूरल नाउन्स पे एंडिंग एस पे नहीं होती है वहाँ पर क्या करेंगे, वी विल यूज कॉमा विद एस, ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव टू यूज इन द प्लूरल ऑल्सो, ओके। वुमेन्स क्लब, चिल्ड्रन, प्ले बुक, ठीक। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स तो नहीं लिखते ना, तो चिल्ड्रन के साथ कॉमा भी हमें ऐड करना है, प्लस एड्स भी ऐड करना है, ओके। एंड यूज ऑफ पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, ठीक, किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सी कंफ्यूजन है, ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव केस इज यूज मेनली विद द लिविंग थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पॉजिटिव केस जो मेनली होता है लिविंग थिंग्स के साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, एंड नॉट विद द नॉन लिविंग थिंग्स, जस्ट लाइक रवीज क्रिकेट बैट, ठीक। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे क्रिकेट बैट्स रवि, ये नहीं, रवीज क्रिकेट बैट, ठीक है, यानी कि रवि का क्रिकेट बैट, मदर्स शॉल, ठीक। तो यहाँ पर जो हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं सिर्फ लिविंग के साथ यूज़ कर रहे हैं, ओके। जस्ट लाइक वी कांट से टेबल स्लेग, हम टेबल स्लेग नहीं कह सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये सेंटेंस पूरा रॉन्ग है, ये वर्ड पूरा रॉन्ग है, टेबल स्लेग नहीं, क्यों, क्योंकि टेबल नॉन लिविंग है, ओके। इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, विदाउट अपॉस्ट्रॉफी, द लेग ऑफ द टेबल, नॉट टेबल स्लेग, ओके। इट इज़ यूज विद नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, हाँ। और किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, उन नाउन्स के साथ जो कि टाइम को डिनोट कर रहे हों, किसी स्पेस को या फिर वेट को, जस्ट लाइक अ डेज मार्च, यानी कि मार्च का एक दिन, ठीक। ये नॉन लिविंग में नहीं आएगा, लेकिन अ डेज मार्च, ठीक, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ओके। इट कैन ऑल्सो बी यूज विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक, जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिविंग नॉन लिविंग वाला रूल नहीं काम करेगा, यहाँ पर हम जो पर्सोनिफाइड कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ओके। जस्ट लाइक इंडियाज़ हीरोज़, ओके, इंडिया कोई थिंग नहीं है, ठीक, ये अपने आप में ही पर्सोनिफाई है, इट मीन्स इंडियाज़ हीरोज़, यानी इंडिया के हीरोज़। इन कंपाउंड नाउन्स अपॉस्ट्रॉफी एस इज एडेड टू द लास्ट टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। जैसे फादर इन लॉ, ठीक, यहाँ पर अगर हमको इस कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रॉफी ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे, जो हमारा लास्ट कंपाउंड वर्ड होगा उस पर हम लोगों को एस ऐड करना होगा, ठीक है। फादर इन लॉज हेल्थ, यहाँ पे फादर्स इन लॉ हेल्थ नहीं लिखेंगे, फादर इन लॉज हेल्थ, ओके। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ द लेसन इज फिनिश्ड एंड you have to write all the exercise in your book, okay. So meet in the next class. Till then, bye bye, stay safe, stay healthy.